Hello everyone. Today's topic is God and evil or the problem of evil by J.H. मैक्लॉस्की। ये एक आर्टिकल बेस्ड रीडिंग है और आज के वीडियो में हम इसे ही डिस्कस करेंगे। Henry John McCloskey was an Australian moral philosopher and writer. He argued that the problem of evil provides conclusive evidence against theism. क्योंकि थीज़म क्या मानता है, थीज़म क्या है, ईश्वरवाद क्या है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अत्यंत दयालु है ना, सर्वव्यापी है और इन क्वालिटीज़ के साथ बुराई को मानना कहीं ना कहीं ये असंगत हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हम एक साथ नहीं मान सकते कि ईश्वर में ये सब गुण भी हैं और उनमें और उनके ये गुण होने के बाद भी इस दुनिया में इतनी सारी बुराई हैं। सो इफ if you ask or if you could ask God only one question, then what would you ask? The most common response is, why is there pain and suffering in the world? है ना, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस से कि इस दुनिया में इतना दुख, इतना सफरिंग क्यों है। If God is all powerful, omnipotent, all knowing, omniscient, and perfectly good, why does he let so many bad things happen? ऐसा क्यों कहा जाता है? This question raise what philosophers call the problem of evil. ये बुराई की एक समस्या है। Many atheists try to turn the existence of evil and suffering into an argument against the existence of God. They claim that since there is something morally problematic about a morally perfect God, allowing of the evil and suffering, so we see there must not be a morally perfect God after all. ठीक है, सो हम कोई एक ही चीज मान सकते हैं। सो ए थियोलॉजिशियन that is a person who tried to prove the non-existence of God commonly claimed that the problem of evil was a problem of logical inconsistency. So it is impossible for all of the following statement to be true at the same time. अब देखिए कि क्या है लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी कि वी हैव some premises. So God is omnipotent, that all powerful. God is omniscient, that is all knowing. God is perfectly good. Evil exists. तो कहते हैं कि any two or three of them might be true at the same time, but there is no way that all of them could be true. इनमें से इन प्रेमिसेस में दो या तीन ही ठीक हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन एक ही समय पर चारों प्रेमिसेस सही नहीं हो सकती कि गॉड ओमनीपोटेंट भी है, ओमनीसिएंट भी है, परफेक्टली गुड भी है, उसके बाद भी बुराई एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर बुराई एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब कि गॉड ओमनीपोटेंट नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है ना, परफेक्टली गुड नहीं है। सो the classical form of argument from evil demonstrates the impossibility of God's creating a world containing any evil whatsoever. This basic idea was put forward by Epicurus, a Greek philosopher, and it was restated by David Hume in his dialogues concerning natural religion. कैसे वो इसको बताते हैं, is he willing to prevent evil but not evil कि ईश्वर बुराई से बचाना तो चाहता है लेकिन वो ये नहीं कर सकता, वो इसके योग्य नहीं है ना। देन ही इज पावरलेस। इज ही एबल बट नॉट विलिंग कि योग तो है लेकिन चाहता ही नहीं बचाना, देन ही इज मेलवेलेंट।
इज ही बोथ एबल एंड विलिंग वेंस देंस इज evil? कि अगर वो एबल भी है और चाहता भी है तो फिर भाई बुराई कहाँ से आई? So this may put in this logical sequence. First is, if God is omnipotent, he could be able to prevent all the evil and suffering in the world. If God is omnipotent. If God is omniscient, he would know about all the evil and suffering in the world and would know how to eliminate or prevent it. है ना? If God is perfectly good, he would want to prevent all the evil and suffering in the world. वो कहते हैं कि अगर ईश्वर सब शक्तिमान है तो क्या वो सारी बुराइयों से बचाएगा, इस दुनिया में जितनी भी बुराई और सफरिंग है वो उससे बचाए। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, उसे सब कुछ पता है, तो उसे पता होगा कि कैसे सफरिंग को दूर करना है और उसे सारे दुखों के बारे में, बुराई के बारे में पता होगा। एंड इफ गॉड इज परफेक्टली गुड, कि वो मॉरली और एब्सोल्युटली गुड है, एब्सोल्यूट गुडनेस है उसके अंदर, सो ही वांट, वो फिर डेफिनेटली बुराई से बचाएगा क्योंकि उसके अंदर दयालुता है, वो एक पूर्ण बीइंग है। बट कंक्लूजन क्या है? गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, और he is not omnipotent and omniscient, और he is not perfectly good। या तो ईश्वर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, या तो वो ओमनीपोटेंट नहीं है और ओमनिशियंट नहीं है, या तो वो परफेक्टली गुड नहीं है। So if God knows about, because if God knows about all the evil and suffering in the world, knows how to eliminate or prevent it, is powerful enough to prevent it, and yet does not prevent it, he must not be perfectly good in a simple way. So McCloskey state that the problem of evil for theists as a simple contradiction, that how does evil exist on the one hand and the belief in importance and perfection of God on the other hand। ये एक थीस्ट के लिए, आस्तिक जो आस्तिक होते हैं, आस्तिकवादियों के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि आप का ईश्वर भी एग्जिस्ट कर रहा है और बुराई भी। So in a simple word, God cannot be both all powerful and perfectly good if evil exists. This contradiction is well set out in its detail by Mackey in his discussion of the problem in Evil and Omnipotence, Mind 1955. Now, solutions available to a theist. Theist क्या क्या argue कर सकता है? So, the essay, which is written by H.J. McCloskey, approached the problem of evil from a more general standpoint, examining a wider variety of solution. The fact of evil create a problem for the theist, but there are several simple solutions available to theist who seriously consider to modify his or her theism. So a theist can argue that God is not powerful. एक थीस्ट इन समस्याओं से बचने के लिए ये कह सकते हैं, गॉड इज नॉट पावरफुल इनफ टू मेक अ वर्ड वेयर द इविल डज नॉट एग्जिस्ट, कि गॉड के पास इतनी पावर नहीं है कि वो एक ऐसा वर्ड बना सके जहाँ बुराई ना हो। देन गॉड क्रिएटेड ओनली गुड इन द यूनिवर्स एंड सम अदर पावर क्रिएटेड द इविल, कि भाई ईश्वर ने तो सिर्फ अच्छा वर्ड बनाया था, अच्छा यूनिवर्स क्रिएट किया था, कोई और पावर है जिसने बुराई बनाई है। एंड गॉड इज, थर्ड इज, गॉड इज ऑल पावरफुल बट मॉरली इम्परफेक्ट एंड चूज टू क्रिएट एन इम्परफेक्ट यूनिवर्स, कि गॉड पावरफुल तो है लेकिन वो मॉरली परफेक्ट नहीं है, तो उसने एक यूनिवर्स भी ऐसा बनाया जो मॉरली परफेक्ट नहीं है, उसमें बुराइयां हैं। Now, further types of evils. For more orthodox theism, evil creates
रियल प्रॉब्लम। जो बिल्कुल कट्टरवादी है ना, अपने आस्तिक वाद को लेके, अपने बिलीफ को लेके, है ना, अपने गॉड बिलीफ को लेके, सो वो उनके लिए ईवल एक सच में प्रॉब्लम है। एंड दिस प्रॉब्लम इज वेल स्टेटेड बाय द फादर जी एच जॉयस। द उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। एंड द टू जनरल काइंड्स ऑफ ईविल आर यूजुअली रेफर्ड टू एज फिजिकल एंड एज मॉरल। सो अगर हम टाइप्स ऑफ ईविल की बात करें, ठीक है, तो दो टाइप की ईविल, फिजिकल ईविल और मॉरल ईविल। तो पहले फिजिकल ईविल क्या है? इसको हम कहते हैं भौतिक बुराई, भौतिक अशुभ, है ना। इसको आप लिख सकते हैं भौतिक अशुभ। So, physical evils are involved in the very constitution of the earth and animal kingdom. So, first is आप फिजिकल इवल को समझने के लिए उसे चार पार्ट्स में ना डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द एरिया विथ एक्सट्रीम कंडीशंस, द एरिया विथ एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक डेजर्ट, ग्लेशियर्स, है ना, डेंजरस वाइल्ड एनिमल, poisonous insect and pest and parasites who reside on other creature। तो जैसे कि रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है, ग्लेशियर जहाँ पिघलते हैं वहाँ मतलब बिल्कुल अत्यधिक ठंड होती है, जो डेंजरस जंगली जानवर हैं, इस तरह से जो उनके थ्रू हमें जो पेन और सफरिंग मिलती है। देन इसके बाद सेकंड, नेचुरल कैलेमिटी। There are various natural calamities like floods, earthquake, forest fires, है ना। कि आप देखो कितनी बड़ी बड़ी बाढ़ आती हैं, सुनामी हो गया, है ना, अर्थक्वेक कितने बड़े बड़े आते हैं कि पूरा का पूरा शहर, उससे भी बड़ा एरिया पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, जंगलों में आग लग जाती है, एंड मैनी अदर्स विच कॉज इमेंस सफरिंग एंड इरिपेरेबल डैमेज। कि इससे भी ज़्यादा जिस डैमेज को कभी जिसका भुगतान नहीं किया जा सकता है, जिसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता है। देन थर्डली, सेवरल डिसीज लाइक कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस एंड मेनी अदर्स दैट टॉर्मेंट ह्यूमंस एंड देयर लव्ड वन। तो डिसीज़ हो गई, अभी इसमें तो हम कोरोना का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, कि कितना ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया। एंड फोर्थली, evils with which we are born, the physical deformities, or one would say, but to put in an informed manner, what we described in today's word as differently abled people due to blindness, deafness, dumbness or some psychological disorder। तो इस चार तरीकों से हम फिजिकल ईविल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिजिकल ईविल क्रिएट नॉट वन प्रॉब्लम actually, but a number of distinct problems for the theist. Joyce and other theists believe that physical goods in fact outweigh physical evil in the world, but the problem is not which predominates, physical good और physical evil, है ना। वो कई लोग ये लॉजिक देते हैं या आर्ग्यूमेंट करते हैं कि फिजिकल गुड बहुत वो किस पर हावी हो जाता है, फिजिकल ईविल पे। फिजिकल ईविल है लेकिन फिजिकल गुड ज़्यादा है। तो कहते हैं कि ये सवाल नहीं है एक्चुअली कि कौन किस पे हावी है, फिजिकल गुड या फिजिकल ईविल। द प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल ईविल रिमेन अ प्रॉब्लम इन एनी कंडीशन, whether the balance in the universe is on side of physical good or not, but because physical evil occurs at all। प्रॉब्लम यही है कि फिजिकल evil एग्जिस्ट कर रही है, वो किस डिग्री में कर रही है, ज़्यादा कर रही है, कम कर रही है, वो किसके मैनर में है, गुड के साथ कंपेटेबल है नहीं है, ये सवाल अलग है। एक सिंपल सा अगर जो समस्या है वो ये कि बुराई है। नाउ moral evil, this covers the willful act of human being। अपनी इच्छा से जो इंसान बुरे कर्म या फिर बुराई को जन्म देता है,
such as wars, crime, self-destructive wise, and damage they cause in human life as murder, rape, etc. है ना, इतनी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं. So, moral evil create a distinct problem because moral evil translates to simply immorality, which is intrinsic in human behavior like selfishness, envy, greed, cruelty, ruthlessness, cowardice, है ना. तो जैसे हम कहते हैं ना कि लोगों में मॉरल वर्च्यूज खत्म होते जा रहे हैं, तो मॉरल वर्च्यूज खत्म होते जा रहे का क्या मतलब है कि उनके अंदर नेगेटिव जो नेगेटिविटी है और नेगेटिव बिहेवियर है, जैसे स्वार्थ हो गया है ना, लालच होना, दूसरों से जेलिसी होना, है ना, कायरता होना, ये सब होना, और इसकी वजह से डेफिनेटली वो खुद भी सफ़र करेंगे और वो दूसरों को भी सफ़र कराएंगे. So Joyce sees moral evil as an even more serious problem than physical evil. Some theists describe it as a privatization or absence of God in order to seek a solution by denying the reality of evil. कई लोग अब जैसे थीस्ट हैं तो वो कुछ ना कुछ तो लॉजिक देंगे ही, तो कहते हैं कि ये तो मतलब ज़रूरी है, ये मॉरल इविल कुछ ऐसा है जो गुड को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, या फिर ये अब्सेंस ऑफ गॉड है जो लोग उनको बिलीव नहीं करते हैं, है ना. इस तरह से वो रियलिटी को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं. McCloskey gives more account of documented historical event which included instance of evil, both physical and moral. Thus, the problem of evil is both real and acute, which state that God and evil are incompatible. Now, most theists admit to the problem of evil and try to prove that conflict is not fatal to theism. वो कहते हैं, अब जो कई जो थीस्ट ऐसे हैं कि जो प्रॉब्लम को तो एक्सेप्ट करते हैं, इविल को तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये थीज़म के लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. एंड second is, some theists admit the reality of the problem of evil and simply avoid it by declaring it to be a great mystery which we poor human cannot comprehend it. जैसे कहते हैं ना, कई बार बुरा हो जाता है तो कई बार लोग ये तर्क देते हैं कि नियति को आप नहीं समझेंगे, ईश्वर के प्लान्स को, गॉड प्लान्स को आप नहीं समझेंगे. वो अभी बुरा हुआ है लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए ही हुआ है. Some theists who adopt a rational approach and argue to show that evil is compatible with and even as a consequence of God's goodness. और कुछ लोग ये कहते हैं कि evil गुडनेस के साथ कंपेटेबल है या फिर ईश्वर की गुडनेस का ही एक परिणाम. McCloskey had an attempt to map the prominent theories and explanation of problem of evil offered by theists. Some of the people consider evil as real and some viewed as unreal or as privation. Privation means a state in which things that are essential for human well-being such as food. Some consider it from moral viewpoint and some discuss it as a matter of faith. Now, proposed solution to the problem of physical evil. पहले हम physical evil को पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, बट अभी हम एक या दो पॉइंट पढ़ेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. सो the proposed solution to the physical problem of physical evil and its critique. So for McCloskey examined the popularly used and philosophically significant solution to the problem of physical evil given by the theist. First is, physical good is impossible without physical evil. पहला तर्क थीस्ट के थ्रू ये दिया जाता है कि in a simple word, for example, pleasure is only possible by way of contrast with pain. जिस तरह से आप पेन प्लेजर को समझना चाहते हैं तो वो सिर्फ तभी समझ पाएंगे जब आप पेन को एक्सपीरियंस करेंगे. सो similarly,
गुड इज ओनली पॉसिबल बाय वे ऑफ कॉन्ट्रास्ट विथ इविल। उसी तरह गुड को भी आप तभी समझ पाएंगे जब आप इविल को एक्सपीरियंस करेंगे। सो ही गिव्स एन एनालॉजी ऑफ कलर। इफ एवरीथिंग वर टू बी ब्लू, it is argued that we would never understand neither what color is nor what blue is। कि अगर सब कुछ ब्लू होगा तो हमें कलर डिफरेंशिएशन के बारे में पता ही नहीं चलेगा और हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि ब्लू कलर क्या है। तो हम हमेशा चीज़ों को कॉन्ट्रास्ट में सीखते हैं। सो अगर इविल एग्जिस्ट कर रही है वो इसलिए क्योंकि गुड को आप तभी एक्सपीरियंस करोगे जब आप इविल को करोगे। सो इविल का इस सेंस में इंपॉर्टेंस है, गुड को समझने के सेंस में। नाउ क्रिटिसिज्म। द प्रॉब्लम विद दिस आर्ग्यूमेंट is that it does not cover all physical good and evil। आपने ये तो बताया कि गुड को समझने के लिए इविल की जरूरत है, ठीक है, बट कोई कैटेगराइजेशन तो नहीं है ना यहाँ पे, हमें किस टाइप की इविल रिक्वायर्ड है। सो इट इज एन आर्ग्यूमेंट गिवन बाय दोज हु थिंक दैट फिजिकल इवल इज द ओनली प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन पेन। ये तो ऐसे लोग तर्क देते हैं, ये समझते हैं कि फिजिकल इवल का मतलब सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन पेन है, कि भाई आप पेन को बियर करेंगे तभी आप खुशी को समझ पाएंगे, तभी आप गुड को समझ पाएंगे, है ना। तो लेकिन फिजिकल इवल में सिर्फ ह्यूमन पेन तो नहीं आता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज आती हैं। Hence the argument is simply irrelevant to most of the physical evil. Even if the argument was valid in terms of pain, so only a speck of pain is needed and not the immense amount of pain we see in the world। वो कहते हैं कि अगर चलो हम ये मान भी लें कि भाई पेन की ज़रूरत है, तो कहते हैं कि बहुत थोड़ी सी पेन की ज़रूरत है समझने के लिए, इतना तो नहीं जितना दुनिया में अथाह पेन है ना। आप लोगों के दुख सुनो तो आपको पता चले कि कितना कितना बुरा होता है। तो कहते हैं कि क्या इतने दुख की ज़रूरत है सुख को समझने के लिए? थोड़े से दुख को जानने के बाद भी तो हम सुख को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो स्पेक ऑफ येलो is all that is needed for the appreciation of blueness and of our color generally। जैसे कहते हैं कि अगर आप कलर का एग्जांपल दे रहे हैं तो भाई थोड़ा सा येलो बहुत है ब्लू को समझने के लिए या दूसरे कलर्स को समझने के लिए। ये तो नहीं है ना कि बहुत ज़्यादा मात्रा में येलोनेस होगी या कोई और कलर होगा तो ही हमें डिफ्रेंशिएशन पता चलेगा। नाउ सेकेंड सोल्यूशन इज फिजिकल इविल इज गॉड्स पनिशमेंट फॉर सिन। अब कुछ लोग कहते हैं कि फिजिकल इविल क्या है, कि जो पाप लोगों ने किए हैं उसके लिए गॉड का पनिशमेंट है, कि वो पाप का पश्चाताप करने के लिए गॉड की तरफ बढ़ें। सो दिस काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट इज जनरली गिवन टू एक्सप्लेन गिवन बाय थीस्ट टू एक्सप्लेन द नेचुरल phenomena called as natural disaster, and some call them act of God। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है? The distribution of disease is and pain is nowhere related to the virtue of the people। वो कहते हैं कि ये जो मान लो डिसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, डिसीज और पेन का, ये कहीं भी वर्च्यू से रिलेटेड नहीं है, लोगों के वर्च्यू से रिलेटेड नहीं है। गॉड सिलेक्शन ऑफ हिज विक्टिम रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन। गॉड जिसको अपना विक्टिम बना रहा है कि भाई इसको मुझे सजा देनी है, वहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, किस बेस पे गॉड सजा दे रहा है। स्पेशली व्हेन इट कम्स चिल्ड्रन हु सफर severely even when they are incapable of committing sins of such enormity। वो कहते हैं कि स्पेशली उस केस में जहां मान लो छोटे छोटे चिल्ड्रन है जो सिन करने के इनमें एबिलिटी ही नहीं है, वो केपेबल ही नहीं है, उन्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिन, पाप क्या है। फर्दर many physical evils that children are born with, such as insanity and other deformity, as well as many more disease, cannot be explained by any crime or sin of the child and justify the punishment।
कि मान लो कोई बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड पैदा हुआ है, तो अब कैसे उसको किस चीज़ की पनिशमेंट मिली है ना, किस सिन की पनिशमेंट मिली है। ऑल्सो पनिशिंग द चाइल्ड फॉर द पेरेंट सिन इज अनजस्टिस। और अगर कोई कहता है कि भाई उसे तो अपने माता पिता के कर्मों की सज़ा मिल रही है, तो ये तो अन्याय है कि किसी और के कर्मों की सज़ा बच्चे को मिल रही है। इन अ सिमिलर वे द सफरिंग ऑफ एनिमल कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर एज पनिशमेंट। उसी तरह एनिमल्स जो सफ़र करते हैं उनको किस बेस पे सज़ा मिल रही है। सो दिस आर्ग्यूमेंट मस्ट बी रिजेक्टेड बेस्ड ऑन द वेरियस रीज़न गिवन अबव। तो आज हम यहाँ तक रहने देते हैं और कल की वीडियो में हम इस थर्ड पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।